Hello friends, welcome back to the best DLR set series. So I hope you all had a good time solving the last DLR sets. Last DLR set that was posted yesterday. That was supposedly one of the toughest set that you would see. And yes, I think idea is not to attempt all the set even in an exam, but the idea of this series is to basically acclimatize you कि what all types of set you can attempt and how do you judge कि भाई कौन सा set easy है and कौन सा set difficult है ना वो होता नहीं है एंड दैट इज व्हाट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जब तुम लोग मॉक देने चालू करोगे देन यू विल सी कि यार मॉक्स में सेट्स डिफिकल्ट आएंगे एंड देन यू विल फेस दिस इशू तो to get rid of it hence I've started this so that you guys start getting a hang of how to attempt the sets time based में कितना करना है and hence I also ask everyone to please put your time taken against every set कि कितना टाइम लग रहा है क्या लग रहा है. Just an announcement, we are starting with the batch 2. If in case you want to register for this batch, that is starting after 2 weeks, you can contact me. Also, there is some discount going on. Correct. So this is the set. Just pause the video, attempt the set, and comment the time taken and your answers and your learning. कि how was it? Also, guys, please video like कर दिया करो. And if you haven't pressed the bell icon against our channel, do it so that because going forward, I will not be able to send these links personally. So it is better if you uh, just press that bell icon so that तुमको अपने आप notification आता रहेगा. ठीक है? So with this, this is the set, and these are the 5 questions that are asked to me. ठीक है? Let's see what this set says. So the set is about कि यार I have okay. This is the set. It says me कि 4% Shubham Prashant. Okay, I'll just enable my marker. Correct. So 4% Shubham Prashant, Rajat and Jay were playing a game in which they were sitting around a round table in 4 equally spaced chair in the clockwise direction. ठीक है clockwise direction में बैठे हैं. In the same order as mentioned above. मतलब ऐसे ही है कि शुभम है फिर प्रशांत है फिर रजत है फिर जय है. On the table there was a pile of 30 cards. ठीक है comprising of 3 different color black, green and pink. Okay. Now the first person to play picks up a card from the pile randomly. If he picks a black card, ठीक है black card अगर वो pick करता है तो he passes the card to the person sitting opposite to him. Okay, अगर उसने black pick किया तो क्या करता है जो भी उसके अपोजिट में बैठा है फॉर एग्जाम्पल शुभम ने उठाया तो वो रजत को देगा प्रशांत ने उठाया तो जय को देगा ठीक है नाउ इफ ही पिक्स अ ग्रीन कार्ड he passes the card to the person sitting to the left okay अगर ग्रीन उठाया तो क्या होगा वो अपने लेफ्ट वाले को देगा and if he picks a pink card then he passes the card to the person sitting to the right okay ये 3 rules है कि क्या होगा जो भी बंदा कार्ड उठाएगा बेसिस की कलर ब्लैक है ग्रीन है या पिंक है ही विल डू सम एक्शन ठीक है now whenever a card is passed to another person the person to whom the card is passed keeps the card with him and the turn passes to him he then picks up a card from the pile of the remaining cards and the game continues in the same manner the game continues till all the 30 cards in the pile are picked up and passed to the relevant person at which the game ends ठीक है excuse me sorry yeah so I think I'm having some cold so yeah I'll try to speak properly ठीक है तो गेम क्या है गेम इज दिस कि someone who is starting the game he just picks up a card and bases the color of the card he does some action कि वो लेफ्ट राइट या आमने सामने कहीं पे पास कर देगा कार्ड को ठीक है फिर क्या होता है जिसको वो पास करेगा कार्ड वो जो भी कार्ड उसको पास हुआ है he'll keep this card with him and बिकॉज उसको कार्ड पास हुआ देन इट इज हिज टर्न टू पिक अप द कार्ड फिर वो पिक करेगा फिर बेसिस ग्रीन आया ब्लैक आया पिंक आया ही अगेन डू समथिंग एंड इस तरीके से जब तक कि सारे कार्ड पिक नहीं हो जाते इस तरीके से चलेगा सब कुछ राइट ये पूरा गेम चलेगा नाउ द पर्सन हु पिक्ड अप द फर्स्ट कार्ड वाज शुभम ठीक है शुभम ने सबसे पहला कार्ड पिक किया व्हाइल द पर्सन हु रिसीव्ड द लास्ट कार्ड टू बी पास्ड वाज जय ठीक है जय को लास्ट कार्ड मिला और कोई टेबल मुझे गिवन है about the number of cards of each color each person had after the end of the game ठीक है लास्ट तक शुभम के पास 3 पिंक थे प्रशांत के पास कुछ था रजत के पास कुछ था ठीक है एंड देन देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर गिवन टू मी ठीक है कि हाउ मेनी ब्लैक कार्ड शुभम के पास कितना था व्हिच मींस मुझे पता लगाना पड़ेगा कि किसके पास कितने कार्ड थे राइट दैट मींस आई विल हैव टू फिल दिस टेबल ठीक है सो
इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। आई इन माय ओपिनियन आई थिंक काफी अच्छा प्रॉब्लम है, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट आई थिंक काफी अच्छी बात है। And for others, even if you're not, see, I'm trying to give you different sets of and different types of problems so that you start learning and you have an exposure to at least 30-40 good sets जो हम free channel पे भी available होंगे, and उसके अलावा we'll do 150 plus sets even in the class. So in total you will have 200 plus अच्छे varieties of sets covered in addition to your mocks या CL, IMS time, whatever mocks that you are taking. ठीक है, चलो, so let's see how to attempt this problem. ठीक है, सो आई जस्ट रिटन डाउन ऑल द इन्फॉर्मेशन हियर इन दिस स्लाइड सो दैट आई कैन डू माय पेन वर्क हियर और वहां पे ज्यादा गंदा नहीं हो। ठीक है, तो पहले तो मैं वो बना लेता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे शुभम है, यहाँ पे मिस्टर प्रशांत सिंह चौहान है। ओके, वी हैव प्रशांत हियर, देन वी हैव रजत who is our quant and DLR god. He's the faculty as well. And then we have Jay sir. Jay sir is our VRC expert. He is the go-to person for any RC doubt. आई रिमेम्बर लास्ट ईयर इसने काफी बच्चों का 60 से 95 लेके आया था परसेंटेज प्लस जय सर। बट ठीक है, ये है ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये इनका एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स सी व्हाट इंफॉर्मेशन कैन आई यूज। सी, व्हाट इज गिवन टू यू इज कि यार सबसे पहला कार्ड शुभम पिक करता है। ठीक है, सो सी यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। सो द पैटर्न ऑफ द प्रॉब्लम इज कि शुभम इज एक्चुअली पिकिंग अप द फर्स्ट कार्ड। अभी क्या हो रहा है, शुभम ने पहला कार्ड पिक किया और पिक करते ही उसने वो कार्ड पास कर दिया, राइट। सो से फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास चार लोग हैं। ठीक है, ए बी सी डी, आई हैव 4 पीपल। ठीक है, ए ने पहला कार्ड पिक किया, पिक करते ही उसने बी को पास कर दिया। ठीक है, बी को पास किया तो फिर बी ने एक पिक किया और फिर उसने सी को पास कर दिया। फिर सी को बिकॉज कार्ड पास हुआ तो फिर सी पिक करेगा और वो डी को पास कर देगा, राइट। और इसमें गिवन है कि लास्ट कार्ड डी के पास रहेगा। ठीक है, सो लेट्स से ये हमारा इवेंट है। तो यहाँ पे इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व, ए इज द स्टार्टिंग नोड एंड डी इज द लास्ट नोड, राइट, विच मीन्स बीच में बी और सी आ रहे हैं, राइट। तो बीच वाले जो भी है विच इज द प्रशांत एंड रजत हियर, उनके पास क्या हो रहा है, उनके पास वो कार्ड तभी पिक करेंगे जब उनके पास कोई कार्ड आएगा, राइट। What I'm saying is they will only be able to pick the card when they are actually receiving some card, right? And the moment they receive some card, they pick the card and then they transmit the card, right? They send the card, they pass the card to the other person. Which means I can clearly say कि यार जितने कार्ड इसके पास आएंगे, पास होंगे, उतने ही ये आगे देगा, right? I can say this very clearly कि for B and C, which is for Prashant and Rajat, जितने cards receive हो रहे हैं, right? Cards जितने मुझे receive हो रहे हैं from any person should be equals to cards that are passed very clearly. ठीक है, this should be for Prashant and Rajat. Now शुभम के साथ क्या होगा, let's see. शुभम के साथ क्या हो रहा है यार, he is actually picking up the card, right? तो because of the fact that he is picking up the card और वो ट्रांसमिट कर रहा है, तो हमेशा उसका ट्रांसमिट एक पास से ज्यादा ही होगा, राइट। अब ऐसा हो सकता है कि ये पूरा लूप घुमा, ए बी सी डी, डी ने वापस से ए को पास कर दिया, बट आई नो कि द नेक्स्ट टाइम एनी कार्ड गेट्स पास टू ए हु इज द स्टार्टिंग पॉइंट, he will have to then pick up the card and then he will have to pass the card because A is not the last person to end the game, right? It is given कि यार last card D के पास आता है, तो which means A के पास जब भी कोई अगला कार्ड होगा he will pass it. तो by the same logic जब भी नया कार्ड होगा उतना तो पास हो ही जाएगा, but he also has this starting pass. जो उसने कार्ड पिक किया वो तो उसको पास करना ही है. So for A or for Shubham in this case I can say कि यार मैं जितने टोटल कार्ड पास करता हूँ ना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दैट आई पास शुड बी इक्वल्स टू रिसीव प्लस वन। रिसीव प्लस वन क्यों? क्योंकि मैं जितने भी रिसीव करूंगा मैं सारे पास करूंगा ही, एंड मैं एक पास एक्स्ट्रा करूंगा, दिस इज द पास जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में जाके पिक किया। अगेन दिस इज जस्ट द कॉन्सेप्ट, इतना सबकी जरूरत नहीं है व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, बट इट इज बेटर दैट आई एक्सप्लेन यू कि लॉजिक क्या है इफ यू वर नॉट एबल टू फिगर आउट। देन लास्ट वाज आवर जय सर। जय सर के साथ क्या है, ये यू कैन टेल मी। काफी क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, रिसीव विल बी इक्वल्स टू पास प्लस वन, क्योंकि लास्ट कार्ड इनको रिसीव होना है, इसके अलावा जब भी इनको रिसीव होगा ही विल हैव टू पास इट, राइट। तो बस एक रिसीव ज्यादा है, तो इनके साथ क्या है यार कि रिसीव शुड बी इक्वल्स टू पास प्लस वन। ठीक है, सो दीज आर द थ्री लॉजिक्स दैट आई हैव सीन
नाउ वी विल सी द एप्लीकेशन ऑफ इट कि यार ये कहाँ काम आएगा. ठीक है. Sorry यार, I'm just having a little cough, so my voice will be थोड़ा सा ऐसे. Kindly bear with me. ठीक है. So first was Shubham. Now let's try to fit in the information that is given to me. The question says that Shubham had 3 pink cards at the end. ठीक है, और मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हाईलाइट भी कर लेता हूँ. ब्लैक कार्ड का मतलब है he passes the card to the person sitting opposite. ग्रीन कार्ड का मतलब है sitting to the left, and पिंक कार्ड का मतलब है he passes the card to the person sitting to his right. ठीक है. तो पहली बात, ये चारों लोग बैठे हैं, एक सर्कुलर टेबल है अंदर, राइट. तो इट इज गिवन कि यार शुभम के पास 3 पिंक कार्ड है. अब जस्ट थिंक बाय द लॉजिक, इसके पास पिंक कार्ड कब होगा. सो द ओनली वे फॉर शुभम टू हैव अ पिंक कार्ड इज जब कोई पर्सन जो इसके लेफ्ट में है, जब वो इसको कार्ड पास करेगा, राइट. बिकॉज इट इज गिवन टू मी कि यार जब कोई बंदा पिंक कार्ड पिक करता है तो ही पासेस द कार्ड टू द पर्सन सिटिंग टू हिज राइट. नाउ आई कैन सी कि प्रशांत के राइट में शुभम बैठा है, तो जब भी प्रशांत पिंक कार्ड पिक करेगा वो पिंक कार्ड को शुभम को पास कर देगा, राइट. सो इफ आई ड्रॉ अ नोडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई विल से कि यार प्रशांत ने शुभम को टोटल 3 कार्ड्स दिए हैं, राइट. आई कैन वेरी क्लियरली से कि प्रशांत हैज पास्ड 3 कार्ड्स टू शुभम. ठीक है. why? Because of this information that Shubham has 3 pink cards, so the only way for Shubham to have 3 pink cards is when Prashant, जिसके राइट में शुभम है, he passes 3 cards to Shubham, right. Similarly प्रशांत के पास एक कार्ड कब आएगा, जब रजत उसको एक कार्ड देगा. सिमिलरली रजत के पास 4 कार्ड कब होंगे, जब जय उसको 4 कार्ड्स देंगे, राइट. व्हाई? बिकॉज जय के राइट में रजत है. सिमिलरली अभी ग्रीन का देखते हैं. ग्रीन का क्या लॉजिक है, ही पासेस द कार्ड to the person sitting to his left, right, which means प्रशांत के पास 4 कार्ड्स कब आएंगे, जब शुभम प्रशांत को 4 कार्ड देगा. क्यों? क्योंकि शुभम अंदर दिख रहा है, शुभम के तो एक्चुअली में लेफ्ट में है प्रशांत, राइट. तो प्रशांत के पास ग्रीन कार्ड तभी आएगा जब कोई बंदा जिसके लेफ्ट में प्रशांत है वो प्रशांत को कुछ कार्ड पास करेगा, which means I can say कि this has to be 4. By the same logic, this has to be 0. By the same logic, this has to be 2. ठीक है. Great. I have filled थोड़ा बहुत information. Other information that is given to me is black card. अभी black कब आता है? Black comes if he picks a black card, he pass the card to a person sitting opposite to him. ठीक है. तो Prashant has 3 black cards. Prashant has 3 black cards, which means वो 3 black card उसको जैसे ही आए होंगे. Definitely, there is no other way. This is 3. Then Rajat has 2 red cards, which means definitely Shubham से ही उसको 2 red cards आए होंगे. There is no other way. This has to be. ठीक है. Now I will just change the color of my ink, वरना काफी बजट हो जाएगा. Correct. ठीक है. So these are the information that is given to me. Now I knew कि ये प्रशांत and रजत के लिए, तो say for example प्रशांत के लिए. So we have discovered because प्रशांत is an intermediary node, उसके लिए जितने पास होंगे उतने ही उसको भेजना पड़ेगा, राइट. सो इट इज गिवन टू मी कि प्रशांत के पास अल्टीमेटली कितने कार्ड्स पास हुए, व्हिच इज पास एज इन उसको कितने कार्ड रिसीव हुए हैं. 3 + 4 + 1 8, राइट. भी हम चेक भी कर सकते हैं यार कि ये 4 है, ये 1 है, 5 और ये 3 8. अगर प्रशांत को 8 कार्ड्स रिसीव हुए हैं तो प्रशांत शुड आल्सो ट्रांसमिट 8 कार्ड्स, राइट. बिकॉज वो इंटरमीडिएरी नोड है, तो ही विल नॉट, तो जितने कार्ड वो रिसीव करेगा उतने ही उसको पास करने हैं. तो देखते हैं प्रशांत ने एक्चुअली में पास कितने किए. सो प्रशांत हैज पास्ड 3 कार्ड यहाँ पे. रजत को उसने 0 कार्ड पास किया है, लेकिन जय को उसने कितना पास किया है, वी डोंट नो. सो बिकॉज टोटल 8 कार्ड्स रिसीव्ड है एंड पास उसने 3 ही किए हैं, तो जो डेल्टा इज 5. 8 - 3 5. सो दैट इंप्लाइज कि प्रशांत शुड एक्चुअली सेंड 5 कार्ड्स टू जय. ठीक है. डन. सो वी हैव सेटल्ड इट फॉर प्रशांत. ठीक है. सिमिलरली रजत का देखते हैं कि रजत इज रिसीविंग व्हाट, 2 + 4 6, 4 + 2 6. So Rajat should also transmit 6, but Rajat is actually transmitting कितना? Rajat is actually transmitting how much? Let's see. Correct. तो रजत टू जय जा रहा था. रजत टू जय 2 कार्ड जा रहे हैं. Okay. This 2 is going, this 1 is going. So 2 + 1 3. 3 ही transmit कर रहा है रजत, which means Rajat will also transmit जो बचे हुए 3 कार्ड है टू शुभम. करेक्ट. करेक्ट.
I hope this is clear, right? That implies Shubham is receiving 3 cards from Rajat. अब 3 cards Shubham is receiving from Rajat और वो straight आ रहा है, which means it has to be black card, right? If he picks a black card, he passes the card to the person sitting opposite to him, which means Rajat ने black card pick किया होगा और वो उसने Shubham को दे दिया होगा, which means Shubham will have 3 black card by the end, and similarly Jay का कितना होगा? Jay will have 5 black cards by the end, right? ठीक है, अभी यहाँ पे और इंफॉर्मेशन होगी, राइट? लेट्स सी क्या होगी. आई नो शुभम के लिए क्या केस होगा. लेट्स एटलीस्ट चेक इट फॉर शुभम, राइट? तो शुभम के लिए वी न्यू कि शुभम के लिए क्या होगा, बिकॉज वो स्टार्टिंग नोड है. जितना भी उसने पास किया है, दैट विल ऑलवेज बी, जितना भी उसने रिसीव किया है -1, राइट? सॉरी, जितना भी उसने रिसीव किया है +1. दिस इज द केस फॉर द शुभम, बिकॉज शुभम इज द ट्रांसमिटिंग नोड. तो आई नो कि यार जैसे ही उसने, बिकॉज उसने फर्स्ट कार्ड शुभम ने उठाया, राइट? सो वॉट एवर फर्स्ट कार्ड दैट शुभम हैज पिक्ड अप, ही विल हैव टू पास इट. वो उसने पास कर दिया होगा आगे टू समवन. इट कैन बी बी सी डी, वी डोंट नो, दैट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द कार्ड, बट इसने कहीं तो पास किया है. ठीक है, नाउ शुभम हैज पास द फर्स्ट कार्ड टू समवन. नाउ इसके अलावा जब भी शुभम को नया कार्ड आएगा, ही विल हैव टू डेफिनेटली पास इट. तो वो सब आपस में कैंसिल हो जाएगा. हेंस शुभम के लिए नेट कार्ड जितना उसने पास किया, दैट शुड बी इक्वल्स टू रिसीव प्लस. ठीक है, सो शुभम के पास ग्रीन कार्ड वी डोंट नो कितना है, विल हैव टू फिगर आउट. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज x, and let's say this is y. ठीक है, because only 2 variables are left. So Shubham is receiving green card, X green card. Green card कब मिलेगा? He passes the card to the person sitting to his left, right? तो जय के लेफ्ट में शुभम है, which means जय ने शुभम को X cards दिए. Similarly, if you see, जय को Y पिंक कार्ड आए, तो Y पिंक कार्ड कब आएंगे? वो शुभम से आए होंगे, which means शुभम ने जय को Y कार्ड्स भेजे हैं. ठीक है, now let's try to apply this condition on शुभम. ठीक है, सो शुभम के पास what are the total cards that शुभम is passing? Let's check. तो पहला y हुआ, right? y +2, and शुभम has also passed 4 cards to Prashant, right? So y +6 is the net number of cards that शुभम has passed, right? Correct. So y +6 is the number of cards that शुभम has passed. अब let's see शुभम ने रिसीव कितना किया है. x प्लस यहाँ से 4 कार्ड आए और प्रशांत से कितना है? 3 कार्ड्स आए, राइट? ठीक है, तो द इक्वेशन विल बी, एक सेकेंड, लेट अस जस्ट क्रॉस चेक, राइट? दिस इज x. रजत से शुभम को कितने कार्ड्स आए? 3 कार्ड्स आए. प्रशांत से शुभम को कितने कार्ड्स आए? 3 कार्ड्स आए. ठीक है, सो x +6 तो ये हो गया. x +6 इज द नंबर ऑफ कार्ड्स दैट शुभम हैज रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स. Now I know कि जितने कार्ड शुभम ने पास किए होंगे, that should be equals to receive +1. So I will just add a +1 here. तो यहाँ से equation turns out to be y is equals to x +1. ठीक है, और I know कि ये सारे total cards का sum should be equals to 30, right? एक बार इसका sum कर लेते हैं. 3 3 6 8 13 17 19 23 24 27, which means x plus y should be equals to 3, right? Because total sum should be 30. Now it is given to me कि y is equals to x plus 1. तो clear है कि x should be equals to 1 and y should be equals to 2, right? Which means this number x, it should be equals to 1 and y should be equals to 2. ठीक है, now let's see what the question tells me. निकालना क्या है? How many black cards did Shubham have at the end of the game? शुभम के पास ब्लैक कार्ड कितने हैं? 3 है. ठीक है, सो इसका आंसर कितना हो गया? इट इज 3. ड्यूरिंग द गेम हाउ मेनी टाइम्स डिड प्रशांत पास द कार्ड टू जय? प्रशांत ने जय को कितने बार कार्ड्स दिए? 5 बार दिए. सो इसका आंसर शुड बी नथिंग बट 5. हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स एट द एंड ऑफ द गेम? ठीक है, हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो शुभम के पास कितने? 3 4 3 7. प्रशांत हैज 8, रजत हैज 6, जय हैज 5 + 2 7 + 2 9. So answer has to be J. ठीक है, J has the maximum number of cards. How many black cards were in the pile at the beginning of the game? ठीक है, black cards कितने हैं? तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13. जितने स्टार्टिंग में होंगे उतने ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, राइट? So this has to be 13. Now how many cards did J pass to Shubham? J
Shubham, which means the value of x. X is nothing but 1. So the answer is 1. Right? So this was a very, very, very beautiful set. I really loved solving it. So I hope that this is a set that you must be seeing for the very first time. बिना approach के it gets very messy, काफी dirty हो जाती calculation if you don't know. And I hope that you take something out of this session and out of this series. If it is the case, मुझे comment में at least बता दो कि ये set अच्छा लगा, नहीं लगा, were you able to solve? What is the biggest lesson that you are taking out of this one DLR set series? And also मुझे ये बताओ कि यार तुम लोग like when you guys attempt this one DLR set, timer लगा के ही करते हो ना? And at what time do you try to attempt the set so that I can accordingly tweak it? ठीक है? चलो guys, okay, that's it for today. I'll see you again tomorrow.